ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے والذی بعث فی الأمیین رسولا مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو جو کہ تمہارے درمیان ہے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے ویزکیہم اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی اس آیہ کریمہ کے تین خاص حصے ہیں کہ تمہارے درمیان آیات کی تلاوت کرتا ہے. تلاوت آیات کا اثر یہ ہوتا ہے جب یہ تمہارے قلب میں اترتی ہے تو تمہارے قلب کو پاک کر دیتی ہے, اور جب تمہارا قلب اور تمہارا سینہ پاک ہو جاتا ہے تب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تب اس کے اندر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے. یعنی عزیزان محترم, اسی لیے یہ بات پاکیزگی قلب ضروری ہے, کیونکہ اگر شیطانی ذہن رکھنے والوں کے سینوں میں علم کو بھیج دیا جائے گا اور علم کو ڈال دیا جائے گا تو اندیشہ یہ ہے وہ پھر علم کا غلط استعمال کریں گے اور علم کا غلط استعمال کر کے دنیا کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کر دیں گے اور وہ انسانیت کا خون بہائیں گے. ایسی تمام مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ علم کا غلط استعمال کیا گیا اور علم کے غلط استعمال کے ذریعے دنیا کو اندر پریزی برپا کی گئی, قومیں تباہ کی گئی, ملک تباہ کیے گئے. پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی. جاہل کوئی پلاننگ کسی جنگ کی نہیں کر لیا کرتے اتنی بڑی بڑی. اس کا مطلب اتنی بڑی بڑی جنگوں کی پلاننگ کرنے کے لیے بھی ایک برین چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ وہ برین ہوتا ہے جس کا قلب بھی نجس ہوتا ہے اور جس کا ذہن بھی نجس ہوتا ہے, جس کو انسانیت کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہ علم کا استعمال غلط طریقے سے شیطانیت کے لیے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ آزادی علم حاصل کرنا ہے بلکہ ان سینوں کو پاک کرنا ہے جس کے اندر علم کو اتارا جائے. آل محمد کا مقصد یہ تھا, قرآن کا مقصد یہ تھا, یہ وہ کتاب تھی جو سینوں کو پاک کرتی تھی, قلب کو طیب و طاہر کرتی ہے. محمد رزق حلال کے ذریعے, اور یہ چیزیں جس سوسائٹی اور جس قوم سے ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب بھی نجس ہو جاتا ہے, اس کا ذہن بھی نجس ہو جاتا ہے, اس کا دل بھی نجس ہو جاتا ہے. پھر اس کو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی, پھر وہ تھوڑے سے پیسے کے لیے آیات قرآنیہ کو بیچ دیا کرتا ہے, غلط تعویلیں اور تفسیریں پیش کیا کرتا ہے اس مجمع کے سامنے جو آیات قرآنی کا مفہوم نہیں جانتی, جو آیات قرآنی کے معنی نہیں جانتی. ایسی کیا باتیں ہیں, ایسی کیا سازشیں ہیں کہ پورے امت مسلمہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھو. کہیں قرآن کو اگر معنی کے ساتھ پڑھنے لگے تو پھر یہ آیت بھی سامنے آ جائے گی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ اللهم صل على محمد وآل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت بھی سامنے آ جائے گی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب یہ ساری آیتیں سامنے آتی چلی جائیں گی تو اتنا زیادہ آسان نہیں رہے گا قوم کو بیوقوف بنانا, اتنا زیادہ آسان نہیں رہے گا کہ آیات الہیہ کا اپنے حساب سے تشریح کرتے چلے جانا. اسی لیے یہ پوری پالیسی اور پلاننگ ہے قوم مسلم کی کہ چند لوگوں کو کہہ دو وہ تیزی سے قرآن کو پڑھتے رہے اور تلاوت کرتے رہے اور ڈاؤن لائن پبلک اس کو کچھ سمجھنے نہ پائے, پیچھے بیٹھی پبلک اس کو کچھ سمجھنے نہ پائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا سمجھا رہے ہیں. آپ سر بتائیے کہ کیا قرآن حکیم میں نہیں ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو. کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا قرآن حکیم میں یہ آیت کریمہ نہیں ہے کہ افلا یتفکرون القرآن, تم نے قرآن میں تفکر نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرسری طور سے باتیں نہیں بلکہ گہرائی سے پڑھنے کا, سمجھنے کا اور غور کرنے کا مطالبہ قرآن حکیم کر رہا ہے. اب یقین مانیے کہ یورپ کی دوسری قومیں قرآن حکیم کو ترجمے اور تعبیروں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. یہاں
बात पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर मोरिस बुकाय एक फ्रेंच का एक सर्जन था, फ्रांसीसी सर्जन था, डॉक्टर था, और वो पहले क्रिश्चियन था। उसने बाइबल को पढ़ा, बाइबल तमाम चेंज बाइबल के अंदर कर दिए गए हैं। उसको कुछ ऐसी बातें मिली जो आज के साइंसी हक़ायक़ से और जो असलियत है उससे मेल नहीं खाती, खास करके गर्दिश के सिलसिले में। और उसके बाद उसने अरबी को सीखा और उसके बाद उसने कुरान हकीम को पढ़ा और तर्जुमे और तफसीर और तावील के साथ पढ़ा कुरान हकीम को, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा। और डॉक्टर मोरिस बुकाय का ये कहना है कि कुरान हकीम में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो आज के किसी साइंसी हक़ायक़ कुछ कहते हो और वो आयत कुछ कहती हो। यानी वो आयत वही कह रही है जहां साइंस सर पटक के हजारों साल बाद पहुंच रही है, वो आयत करीमा सीधे वहां पहुंचाना चाह रही है। दूध दे मोहम्मद। अफगानिस्तान के मिटने के बाद और तकरीबन खत्म हो जाने के बाद, खंडहर में तब्दील हो जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा को होश नहीं आया। इराक की 80% से ज्यादा तबाही के बाद और खंडहर में तब्दील हो जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा को होश नहीं आया। अभी अभी लीबिया की तबाही के बाद उम्मत मुस्लिमा को होश नहीं आया। रोज बरोज यहूदी बस्तियां बस्ती चली जा रही हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास चैनल्स हैं, उनके पास मगर है, जैसे चाहते हैं कुछ मुल्लाओं को खरीदते हैं और आयात इलाहिया की तशरीह करा दिया करते हैं, कुछ पैसा पेट्रो डॉलर की सूरत में वाया फेंक दिया करते हैं और उसके बाद जैसे चाहते हैं वो कुरान के साथ मजाक कर रहे हैं और उलूम आले मोहम्मद के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि परवरदिगार आलम का कुरान हकीम में वादा है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो कुरान हकीम की आयात के माने और मफ़हूम को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, कोई उसमें कोई तब्दीली और रद्द बदल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खालिक कायनात ने ली है। मैंने ये भी कहा कि हर हम उसको लीडर को मानते हैं जिसके लिए कुनू मा सालिमीन आयत कह रही है, सच्चों के साथ हो जाओ। हमें कोई ऐसा सच्चा तलाश करके ले आ दीजिए कि जो महद से लहद तक सच्चा हो। अगर कुरान की इस्तिलाह में, कुरान की डिफिनेशन से सच्चे की बात होगी तो फिर कुरान को ऐसे सच्चे की साथ होने का हुक्म नहीं देगा जो रात में सच्चा हो, दिन में झूठा हो, सुबह सच्चा हो, शाम में झूठा हो, इस साल सच्चा हो, अगले साल झूठा हो, परेशानी में सच्चा हो, आसानी में झूठा हो, आसानी में सच्चा हो, परेशानी में झूठा हो, घर में झूठा हो, बाहर सच्चा हो, घर में सच्चा हो, बाहर झूठा हो। ऐसा तो नहीं होगा। तन्हा सच्चा हो, भीड़ में झूठा हो, भीड़ में झूठा हो, भीड़ में सच्चा हो, तन्हा झूठा हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये वो सच्चे होंगे कि अज़ीज़ान मोहतरम, ये कौन है सच्चे? परवरदिगार आलम एक मतलब का तारुफ तो करा दे, इशारे तो देता चला जा रहा है। कहा क्या मालूम, हमने इसीलिए आयत में सीधे नाम नहीं दिए, इसलिए कि तुम दुश्मनी में उन नामों को आयतों से हदफ करवा देते, उन नामों को निकलवा देते। हमने कहा तो था नसारा नजात के मुकाबले में रसूल ले आओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाए, ताकि क़यामत तक तारीख ये देख ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की इस आवाज पे सच्चों में मदीने से और कोई लब्बैक कहने वाला नहीं था, सिर्फ ये मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। आज को इशारा करते तो चलते नजर आए, हम इनसे कोई भी मुबाहला नहीं करेंगे मोहतरम। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया को ये रास ना आया सच्चाई, दुनिया को इंसानियत के ये अल्लाह और इतना मजबूत कर दिया अली का बेटा है जिसके बाप के है। आज इसीलिए ये सब परेशान है, दुश्मनी आकर खाए जा रही है। उसका बेटा हुसैन कहा मैं कभी सर कटाने से नहीं चलता, मैं तफसीर व तावील मुखाबेगाही हूँ, मैं तफसीर मुखाबेगाही की बतरकना वाले खिलाफीन की मंजिल में हूँ। मैंने नाना से वादा कर लिया, नाना जब तक हुसैन रहेगा तेरे दीन को ऊपर आज नहीं आएगी। आपको मालूम है ये वादा कितना मजबूत वादा था। इस बातों को आप वहीं से जोड़ लीजिए कि ये पूरी बात
कहीं भी हुक्म था कि ये रसूल अगर तुमने ये ना पहुंचाया तो तुम ना पहुंचाया पैगाम नबी, वो इसलिए था ना कि इसके बाद अगर तुम विलायत का ऐलान नहीं करोगे तो आपकी वफात के बाद, आपकी शहादत के बाद दूसरे अपने हिसाब से इस्लाम की तशरीह और तामीर करेंगे और खिलौना बना देंगे। बस यही बात थी कि अली के बाद कोई और भी विलायत की मंजिल में हो हसन, और हसन के बाद हुसैन। ये मामला हदीस से चलता हुआ हुसैन तक विलायत का आया था। इसीलिए इमाम मंसूर को ये मंजूर नहीं था कि कुरान के साथ खिलवाड़ किया जाए, आयात इलाहिया की गलत तशरीह की जाए और मुल्कियत का गंदा खेल खेला जाए इस्लाम के लोगों के ऊपर। इमाम मंसूर की काम में सर देना गवारा कर सकता हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया, औरतों को लिया और अपने घर और खानदानों को लेकर के सफर अख्तियार किया। आखिरी और हज होने से पहले 2 दिन पहले इमाम ने फिर मक्के को छोड़ दिया। उसके बाद इराक का सफर इमाम ने अख्तियार किया। क्यों? सारे कारवां, सारे काफिले आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं हज करने के लिए और इमाम मंसूर वापस जा रहे हैं। कोई तो बात होगी कि नवाज रसूल रसूल काबे को देखता जाता है, आंसू बहाता जाता है, गिरिया करता जाता है, पालने वाले माफ करना, मैं तेरे काबे के करीब आकर के मैं तवाफ काबा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हज नहीं कर पा रहा हूँ। कितना दिल टूटा होगा हुसैन का, लेकिन आज वापस होते हैं। हुर्मत काबा को बचाने के लिए कुछ हाजियों के भेष में कातिलों को भेज दिया गया था। उसके बाद मैदान करबला में आए और रोज़े आशूर आ गया और रोज़े आशूर के बाद 11वीं मुहर्रम की वो सुबह आई कि एक मर्तबा शिव ताबियाना लिए हुए जलते ख्याल में रात पे बैठी हुई बीवियों के करीब आया। अरे आप तुम लोग कहाँ बैठी हो, उठो तैयार हो, तुम्हें सफर करना है। एक मर्तबा जनाब सकीना कहती है मैं नहीं जाऊंगी इसलिए कि मेरा बाबा अरे बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, अरे मेरा भैया अली असगर, अरे यही के ऊपर धीरे धीरे निशाना बना, मैं बाबा को छोड़ के और मैं भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे शिव ताबियाना आना चाहते हुए सकीना के करीब आया। 4 साल की कमसिन बच्ची ने ककबाते होठों से आंखों में आंसू भर के कुरान की तरफ देखा, कहा ए चाचा अब्बास अरे मेरी मदद को आइए। आज शिब्र में इतनी हिम्मत कि आपकी सकीना को ताने देता है, मैं नहीं चलने को कहती हूँ तो मेरे दमाचे मारता है। अल्लाह अकबर। आवाज सकीना सुन के अरे लाशा अब्बास तरफ गया होगा। अरे खुदा आपको किसी गम से न रुलाए, अरे कोई परेशानी ना हो, साल भर खुदा हर परेशानी से मोमिनों को बचाए रखे, इज्जत व आबरू कायम रहे, सबका साया कायम रहे। अजीजों, जनाब सकीना की ये परेशानी शायद इसीलिए इमाम समझाते जाते थे, तो हमें भी हम बराबर सुना करते हैं, ए बेटा मेरा सीना ना होगा, मेरे पास खाक का बिस्तर होगा, जला हुआ खैमा होगा, बेटा फिर प्यार से सर पे हाथ ना होगा, बेटा तमाचे खाने के लिए तैयार। ज़ैनब भाई बस आखिरी जुमले आपकी ज़हमत को तमाम मुझे मालूम है तकरीबन 1 बज गया है, मुझे नहीं परेशान करना आपको, बजाय से अदा आप बचपने से करते हैं और जब तक जिंदगी रहेगी करते रहेंगे, मुझे परेशान नहीं करना है आपको। बस हम लोग के बाद बड़ी मुश्किलों से शहजादी ज़ैनब ने कहा, अरे शहजादी रबाब अरे सवार हो जाइए, तमाम बीवियां सवार हो चुकी। एक मर्तबा जनाब रबाब ने आरे लरसते हुए खून के आंसुओं से की तरफ देखा, अरे लाशा हुसैन की तरफ देखा, नशेब में काए वाली वारिस गवारे ना तेरी रबाब को मजबूर किया जा रहा है। अरे सैयदे सज्जाद को बचाने के लिए ताजियाना शिब्र से रबाब जा रही है, ए वाले अपनी चादर भी नहीं है तो मैं तेरे लाशे पे डाल, चादर छिन गई, ए वाले मेरे बच्चे को तेरे हवाले कर दिया। अरे अरे इजाजत हो तो जले हुए झूले की चंद लकड़ियों को लेकर के तस्कीरी हुई, चली जाओ। शहजादी निकली। रवायतें ये कहती है कि एक वो वक्त आया कि काफिला एक जगह से आगे नहीं बढ़ता और उसके बाद शिव ताजियाना लिए हुए जनाब ज़ैनब के करीब आया, सैयद सज्जाद के करीब आया।
اور اس کے بعد جناب سید سجاد نے دبی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بابا کے سر کی طرف دیکھا. اے بابا ارے قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام مظلوم کے لب ہلے اور اس کے بعد خون کے آنسو ٹپکے. کہا اے بیٹا سید سجاد ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں نہیں ارے راستے میں گر گئی ہے. جب تک میری سکینہ نہ ملے گی میں آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا. شبل تازیانہ لیے سید سجاد کی طرف بڑھتا ہے. شہزادی زینب اترتی ہے. ارے اس کے بعد سکینہ کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن اب پھر شبل نے کیا کیا؟ اچھا یہ بچی بار بار گر رہی ہے. ارے ایک رسن مارا گلے. ارے شبل کو اونٹ کی جناب سکینہ کو شبل نے اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیا. اب جب یہ چلتا تھا ارے تو جناب سکینہ کا سینہ چھل جاتا تھا. اسی لیے تو قید خانہ شام میں ارے جب بچی نے دم توڑا اور جناب سید سجاد نے یہ چاہا کہ کرتا اتارے ارے تو کرتا کال کے ساتھ ارے اس کو اسی کے پٹے کرتے میں دفنا دیا. آئے مقدر میں